Hello students, today we are going to take a new chapter in your English textbook, Moments, chapter number 4, In the Kingdom of Fools. ये हिंदी कहानी में से अंधेर नगरी चौपट राजा उस कहानी में से उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में द किंगडम ऑफ फूल्स. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They did not want to run things like other kings. So, they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single doodoo, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a doodoo. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay here. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The guru said, "They are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next." But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. The merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice." The king said, "Justice will be done. Don't worry," and at once summoned the owner of the house.
When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him." The accused pleads guilty. "Your wall killed this man. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you." "Lord," said the helpless merchant, "I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him." "Who is that?" "My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby." The king sent out a messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot. "You there, did you build this man's wall in his father's time?" "Yes, my lord, I did." "What kind of wall is this that you built?" "It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death." Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall, and it was no good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives." "You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is." The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. "Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him?" "Yes, my lord, I remember it very well." "So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You'll have to be punished." She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's that damned goldsmith's fault." "Poor thing, she is absolutely right," thought the king, weighing the evidence. "We have got a real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding, at once." The king's bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. "My lord," he said, "I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuse because I couldn't finish making a jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming, and they wouldn't wait. You know how important rich men are. Who is this rich man who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him?" The goldsmith named the merchant
and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice has come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." But the king consulted his minister and ruled decisively. "It's true, your father is the true murderer. He is dead. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this trouble, of this horrible crime. You must die." And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king, too worried about it. "What shall we do?" he said, when suddenly it struck him that all they need to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee. "What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi," he cried. "That may be true, but is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake," they said, and carried him to the place of execution. He remembered his guru, his wise guru's words, "This is a city of fools. You don't know what they will do next." While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see war, and he could see the future, and he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him. "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" "Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask?" "Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me." When the disciple heard this, he understood and began to clamor. "Me first! You brought me here first. Put me to death first, not him." The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" "We chose him because we needed a fat man for the stake." "You shouldn't ask me such a question. Put me to death first," replied the guru. "Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand." "Will you promise to put me to death if I tell you?" asked the guru. The king gave him his solemn word. The guru took him aside, out of the servant's earshot, and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this, or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first
will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now, keep your word, my lord, and put us to death. Me first. Remember. The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves, and we'll be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. So he told the executioners, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand, with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and a silly minister, on the condition that they could change all the old laws. From then on, night would again be night and day would again be day. And you could get nothing for a dudu. It became like any other place. A Kannada folk tale from A.K. Ramanujam's Folk Tales from India. तो अब कहानी हिंदी में, अगर आपको ये समझी नहीं है, मैं जानता हूँ कि आपको कहानी समझ गई है। बहुत अच्छी कहानी है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है ये। तो एक ज़माने में एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहाँ का राजा और मंत्री दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ़ हुआ करते थे। ना केवल राजा और मंत्री, यहाँ के लोग भी राजा का और मंत्री का विरोध नहीं कर पाए। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा और मंत्री ने सोचा कि हमें हमारा राज्य जो है बाकी राज्यों से अलग हमें इसे बनाना है। तो इसको अलग करने का एक ही तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा, क्योंकि सारे राज्य जो है, विश्व में जितने भी राज्य है, वो दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। तो हम इन सब से परे हैं, इन सब से अलग है। इसीलिए हम दिन में काम नहीं करेंगे, हम दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। तो ऐसा ही एक फरमान राजा ने भिजवा दिया अपने राज्य में, हर गांव में, हर गलियों में, शहर में, और ऐसा ऐलान करवा दिया कि ये राजा का ऐलान है कि आज से दिन में कोई काम नहीं करेगा, दिन में हर कोई सोएगा और रात में काम करेगा, और जो भी इस फरमान को नहीं मानेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस प्रकार से शहर के सभी नागरिक, इस राज्य के सभी नागरिक जो थे वो घबरा उठे
अब राजा का फरमान जो है, राजा का आदेश है, आदेश का तो पालन करना ही पड़ता है। तो उस रात से हर कोई रात में जगने लगा और दिन में सोने लगा। यहाँ तक का यहाँ के जानवरों को भी उन्होंने उसी प्रकार से ट्रेनिंग दे दी। जो खेत, अगर उनको खेत जोतना था, हल चलाना था, तो रात में बैल को जगाकर वो खेत ले जाया करते थे और उससे बहुत काम कराते थे। बैल बेचारा रात में थक जाया करता था और दिन में आके वो सो जाया करता था। तो एक बार ये इस शहर में, इस राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी साधु और उसका शिष्य इस गांव में आए, इस राज्य में आए, इस शहर में आए। और शहर तो बहुत सुंदर शहर था, बड़े बड़े चौड़े चौड़े सड़कें थी। लेकिन एक बात बड़ा अजीब था, सड़क सन्नाटा, सड़क पे सन्नाटा था, सड़क में खाली था, एक चूहा भी इधर उधर भाग नहीं रहा था। यहाँ तक कि गाय, बकरी, कुत्ते, बैल सब कोई सोए हुए पड़े थे। तो ये गुरु और ये शिष्य दिन भर इस शहर के फेरे काटते रहे, चक्कर काटते रहे। और जब शाम हुई तो अचानक से गांव में हलचल, शहर में हलचल हो गई, राज्य में हलचल होने लगी। लोग अपने घर से बाहर निकलने लगे, किसान खेत पे जाने लगे, व्यापारी अपना दुकान खोलने लगे, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। वह पास में एक दुकान में गए कुछ सामान खरीदने के लिए। तो जब वो सामान खरीदने लगे तो ये देखकर वे बड़े हैरान हो गए कि हर एक चीज़ जो है एक सेर में, सवा यानी 4 आने में हर कुछ मिल रहा था। जो भी चीज़ चाहिए 4 आने में आपको मिल जाता। अगर आपको एक सेर खोआ चाहिए तो 4 आने में मिलता था, एक सेर चावल चाहिए तो वो भी 4 आने मिलता था। सेर यानी मेजरमेंट था उस ज़माने का, जैसे हमारे पास पाव होते ना, 1 पाव 2 पाव या पैली, तो हर एक चीज़ जो सेर जो थी वो चवन्नी में 4 आने में हर कुछ मिल जाता था। तो इन्होंने अच्छा खासा सामान खरीद लिया, बढ़िया सा खाना वाना पकाए। खाना खाने के बाद में दोनों गुरु और शिष्य बैठ गए। गुरु ने कहा, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है, बिल्कुल बेवकूफ़ लोग रहते हैं यहाँ पर, बेहतर ये होगा कि हमें शहर को छोड़कर चला जाए। लेकिन जो शिष्य था वह थोड़ा सा खाने पीने में विश्वास करने वाला था। उसको लगा कि क्या गुरु, इतना सस्ता यहाँ पर खाना मिल रहा है, इतना बढ़िया शहर है, सस्ते में सब कुछ मिल जा रहा है, तो क्यों हम इस शहर को छोड़कर चले जाए। तो गुरु ने कहा, देखो बेटा, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। अगले पल क्या निर्णय लेगा राजा, अगले पल में क्या निर्णय लेगा, क्या डिसीजन बनाएगा, इसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है वो हमारे लिए, हमारे हित में नहीं ना हो, तो बेहतर ये है कि शहर हम छोड़ देते हैं। लेकिन शिष्य मानने को तैयार नहीं था। तो फिर गुरु ने बोला, ठीक है, तुमको अगर यहाँ रुकना है तो रुको, मैं तो यहाँ से चला। ये बोल के गुरु वहाँ से चला जाता है और शिष्य बड़े खुशी खुशी से यहाँ पर रुक जाता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारने की ठान लेता है। लेकिन एक दिन जब सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था, एक चोर जिसका काम चोरी करना होता है, उसने सोचा कि मैं दिन दहाड़े एक अमीर सेठ के यहाँ चोरी कर लूँ। और उस अमीर सेठ के यहाँ दिन दहाड़े, दिन दोपहर 12 बजे के आसपास वह चोरी करना चला गया। दीवार में उसने एक गड्ढा बना दिया, छेद कर दिया, और मकान के अंदर वो घुसने ही वाला था जब दीवार, पूरी की पूरी दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो उस दीवार में दबकर मर गया। उसके भाई को, चोर के भाई को जब ये पता लगा तो वो हाय हाय करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और अपनी शिकायत उसने राजा के पास जाकर कर दी। अगले दिन राजा ने, अगली रात में दरबार बुलाया गया था, उसी रात वो राजा के पास जाकर शिकायत कर दी। उसने कहा, महाराज, मेरा भाई अपना परंपरा के अनुसार जो हमारा जो व्यवसाय है, जो हमारा जो धंधा है, वह ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, ईमानदारी से चोरी कर रहा था, लेकिन सेठ जी की दीवार गिर गई
और मेरे भाई की मौत हो गई, तो मुझे इसका जुर्माना चाहिए और सेठ जी को आप सज़ा दिलवा दीजिए। इतनी सी मेरी आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है। राजा ने कहा ठीक है, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा बेकसूर भाई बेचारा बेवजह ही मारा गया, वो तो अपना काम ठीक ढंग से कर रहा था। तो सेठ जी को बुलाया गया। सेठ जी को जब दरबार में लाया गया, सेठ जी घबरा उठे, थर 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 काँपने लगे और उसने कहा महाराज, मैं जानता हूँ कि मुझसे भूल हुई है, मैं जानता हूँ कि मेरी दीवार जो थी कच्ची थी और एक बेकसूर चोर उसमें दबकर मर गया, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है, मैंने दीवार नहीं बनाई। दीवार तो मैंने किसी मज़दूर से बनवाया था, जो मज़दूरी करके जो बढ़ई होता ना, बढ़ई ने बनवाई थी, और मैं जानता हूँ कि ये बढ़ई कहाँ रहता है। तो फिर बढ़ई को बुलवाया गया और बढ़ई काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। बढ़ई आया और बढ़ई से राजा ने पूछा, क्या आपने इस सेठ की दीवार बनाई है? तो उसने कहा हाँ, इस सेठ के पिताजी ने मुझे दीवार बनाने का आदेश दिया था और मैंने इसकी दीवार बनाई, और दीवार ठीक ढंग से नहीं बनी, इसलिए टूटकर वो उस ईमानदार चोर के ऊपर गिर पड़ी और वो ईमानदार चोर मारा गया। तो राजा ने कहा फिर तो तुम्हें सजाए मौत दी जाती है, आपने किसी की हत्या की है, आप एक कातिल हो और आपको सजाए मौत दी जाती है। तो ये मज़दूर गिड़गिड़ा उठा कि महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मुझे ठीक ढंग से याद आया, जब मैं दीवार बना रहा था तब एक नाचने वाली लड़की छम 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 करके बार बार उस सड़क से ऊपर नीचे कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान बढ़ गया और मेरा ध्यान दीवार में नहीं लगा और दीवार कच्ची बनी, जिसकी वजह से दीवार टूटकर एक ईमानदार चोर के ऊपर गिर गई और वो बेचारा ईमानदार चोर मर गया। इसमें मेरा कसूर नहीं है, कसूर उस नाचने वाली लड़की का है। तो राजा ने कहा अरे बाप रे, ये तो इतना सिंपल केस नहीं है, केस तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस नाचने वाली लड़की को बुलाया जाए। अब ये नाचने वाली लड़की कहाँ रही? वो तो एक बूढ़ी औरत हो गई थी। वो आई, उसको बुलाया गया। तो राजा ने कहा देखो, तुम बार बार सड़क से ऊपर नीचे कर रहे थे, क्या ये सच है जब ये बेचारा मज़दूर दीवार बना रहा था, आप बार बार उस सड़क से ऊपर नीचे कर रहे थे? क्या तुमने उस मज़दूर को वहाँ देखा था काम करते हुए? तो उस नाचने वाली ने कहा हाँ महाराज, मुझे याद है कि ये मज़दूर वहाँ पर काम कर रहा था और मैंने इसे देखा था, जिसकी वजह से इसका ध्यान भटक गया और उसने दीवार जो है वो कच्ची बनाई। तो महाराज ने बोला फिर तो सज़ा आपको मिलनी चाहिए, फिर आप सजाए मौत के हकदार हो। तो ये नाचने वाली औरत ने कहा कि महाराज, मुझे याद आया कि मैं किस वजह से बार बार उस सड़क से ऊपर नीचे जा रही थी, क्योंकि मैंने सोनार के पास में अपने कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे और वो मेरा काम समय पर नहीं कर रहा था। मुझे बार बार अभी आओ तभी आओ, अभी आओ तभी आओ, ऐसे करके दिन भर उसने लगा दिए, लेकिन उसने मेरा जो गहने थे वो बनाकर नहीं दिया। इसकी वजह से मैं बार बार उस सड़क से जा रही थी और आदमी का ध्यान भटक गया, उसने कच्ची दीवार बनाई, कच्ची दीवार उस बेचारे ईमानदार चोर के ऊपर गिर गई और वो बेचारा ईमानदार चोर मर गया। तो राजा ने कहा ठीक है, फिर उस जौहरी को बुला कर ला लो जिसने दीवार बनाई। जौहरी को बुला कर लाया गया। जौहरी थर थर काँपते हुए आया। अब कहा कि अब जौहरी भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया था, काफ़ी बूढ़ा हो गया था। तो जौहरी ने कहा, जौहरी से पूछा गया क्या आप इस नाचने वाली औरत को जानते हो? तो बोले हाँ। तो बोले आपने इसके गहने समय पर क्यों नहीं बनाए? आपकी वजह से बार बार ऊपर नीचे कर रही थी, चल रही थी दीवार, और ये बेचारा मजदूर जो था मेहनत करते हुए दीवार बना रहा था, इसका ध्यान भटक गया और इसने कच्ची दीवार बनाई और ये कच्ची दीवार एक ईमानदार चोर के ऊपर गिर गई और वो बेचारा ईमानदार चोर मारा गया। तो आप सजा के हकदार हो। तो फिर जौहरी ने कहा कि महाराज रुकिए रुकिए रुकिए,
मेरी बात भी सुनिए, आप निर्णय लेने से पहले मेरी बात भी थोड़ा सा सुनिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, बताइए क्या बात है। तो उसने कहा महाराज, मुझे याद है कि इस औरत ने मुझे गहने बनाने के लिए सोना ज़रूर दिया था, लेकिन आप तो जानते कि अमीर लोग कैसे होते हैं। उस वक़्त एक अमीर सेठ के यहाँ शादी थी और वो चाहते थे कि सबसे पहले मैं उनके गहने बनाऊं, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन इस औरत को बार बार टालना पड़ा, बार बार बुलाना पड़ा, जिसकी वजह से वो छमछम छमछम करते हुए सड़क पर चलती आ रही थी, जिसकी वजह से इस गरीब मज़दूर का ध्यान भटक गया। उसने कच्ची दीवार बनाई और कच्ची दीवार बेचारे ईमानदार चोर के ऊपर गिर गई और वह बेचारा ईमानदार चोर मारा गया। तो सज़ा का हकदार मैं नहीं, वह व्यापारी है। तो महाराज ने कहा ठीक है, व्यापारी को लाया जाए। तो पता चला कि जो व्यापारी था वह इसी व्यापारी के पिताजी थे। तो अब ये व्यापारी घबरा गया। महाराज से कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए, ये दीवार कच्ची बनी ज़रूर, लेकिन दीवार मेरे समय में नहीं बनवाई गई थी। ये दीवार तो मेरे पिताजी ने बनाए थे और मेरे पिताजी तो गुज़र गए, तो आपको सज़ा मेरे पिताजी को देनी पड़ेगी, आप सज़ा आप नहीं दे सकते। तो महाराज ने कहा अपने मिनिस्टर से सलाह करके सज़ा तो देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने अपने पिताजी की संपत्ति हासिल की है, उसी प्रकार से उसने जो कुछ अच्छा किया, जो कुछ बुरा किया, उसके भी हकदार आप ही होते हैं। इसलिए आपको सजाए मौत सुनाई जाती है। और ये ऐलान उसने करवा दिया। इसके लिए मरने का एक रस्सी बनाओ, या जिस पे वो मुंडी रख के सर काटते हैं ना, वो बनाओ। तो कुछ दिन वो लग गए बनाने के लिए। जब वो जो सर काटने का जो जगह थी रखे थे बनाने के लिए, उसका जो गला का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा बड़ा था। तो महाराज ने बोला अरे ये कैसा हो गया, इसमें तो इस इंसान का गला ठीक ढंग से फिट ही नहीं होता है, काफ़ी छोटा हो गया, काफ़ी पतला हो गया। अब ये व्यापारी जो था दुबला पतला सा था। तो मिनिस्टर ने बोला कि इसका तो एक ही उपाय है, बहुत आसान उपाय है, इसके जगह किसी हट्टे कट्टे मोटे इंसान को पकड़ कर ला लो और उसका सर कलम कर दो। तो महाराज ने कहा ये भी ठीक है भाई, जाओ किसी मोटे इंसान को ढूंढ के लाओ। तो सिपाही निकल गए ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पहुँच गए शिष्य के पास। शिष्य तो अच्छा खा पी कर, घी चावल और मिठाइयाँ खाकर बहुत मोटा हो गया था। सिपाही ने इसको धर दबोच लिया, पकड़ लिया। ये चिल्लाने लगा कि मैंने क्या गलती की, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। तो बोले अपराध आपने नहीं किया, राजा का फरमान है किसी मोटे इंसान को पकड़ कर लाओ, और आप मोटे हो इसलिए हमने आपको पकड़ लिया, चलो अभी आप। और उसको वहाँ पर ला लिए राजा के सामने। राजा ने कहा ठीक है, अब ये मोटा है, इसको डाल दो, इसका गर्दन काट डालो। तो ये बेचारा शिष्य मन ही मन अपने गुरु की बात उसको याद आ गई कि गुरु ने क्या बताया कि अगले ही पल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो वो अपने गुरु को दिलो जान से याद करने लगा। इनके गुरु जो थे वो अंतर्यामी थे। उनको एक सपना आया, एक दृश्य दिखा कि मेरा शिष्य जो है वो बड़े मुसीबत में पड़ गया है और उसकी जान बचाना है। तो वो अपनी जादुई शक्ति से यहाँ तुरंत पहुँच गए और उसने अपने शिष्य के कान में कुछ जाकर फुसफुस करके कुछ कह दिया और शिष्य भी बड़ा खुश हो गया। शिष्य ने बोला ठीक है। फिर ये गुरु गए महाराज के पास। महाराज बोले आप मुझे ये बताइए कि गुरु बड़ा होता है या चेला। तो महाराज ने बोला ये कैसा सवाल है, गुरु तो हर वक्त बड़ा ही होता है, चेला हर वक्त छोटा होता है। तो महाराज ये गुरु ने कहा फिर एक काम कीजिए, आप पहले मुझे इस फांसी के ऊपर चढ़ाइए, जो फांसी का जो गला है आप पहले मुझे इस फांसी पर चढ़ाएंगे, बाद में मेरे शिष्य को चढ़ा देना। तो महाराज ने बोला आप तो एक बड़े अंतर्यामी लगते हो, आप क्यों मरना चाहते हो, इसके पीछे क्या राज है। तो गुरु ने कहा इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। चुपचाप से उसको अलग ले गए कि ताकि नौकर चाकर उसकी बात सुन ना पाए। और उसने राजा को बताया कि आपका जो राज्य है वो बहुत सुंदर राष्ट्र है, हम बहुत राज्य घुमाए हैं, पूरी दुनिया घुमाए, लेकिन आपके जैसा राज्य
हमने कहीं पर भी नहीं देखा। आपने जो फांसी का जो तख्त बनाया है ये बिल्कुल नया तख्त है। आज का जो समय है, इस समय पर उस तख्त पर जो भी कोई पहले चढ़ेगा वह अपने अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और जो दूसरा चढ़ेगा वो इस अगले जन्म में यहाँ का मंत्री बन जाएगा। तो राजा बोला, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इस प्रकार से वो आज का दिन उसने टाल दिया, उसे कि आज हम फांसी पे आप लोगों को नहीं चढ़ाएंगे। और रात को राजा अपने मंत्री को बुलाकर उससे चर्चा करने लगा। उसे बताया कि ऐसी सी बात है, देखो साधु संत महाराज जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, और इस महाराज ने बताया है कि जो राज्य है, जो अभी जो कोई मरेगा वो आने वाले जन्म में, अगले जन्म में इस राज्य का राजा बन जाएगा, तो क्यों ना हम खुद मर जाए, काहे को हमारा जो इतना अच्छा राज्य किसी और के हवाले कर दे। तो आज रात को हम ऐसा करेंगे कि हम इन दोनों को, गुरु को और शिष्य को रिहा कर देंगे और उनकी जगह हम ले लेंगे। और रात में उन्होंने वैसा ही किया। रात में जाकर उन्होंने कहा कि अपने जो वफादार नौकर थे उनको कहा कि हमें फांसी के तख्ते पर ले जाइए और हम दोनों को एक एक करके चढ़ा दीजिए। पहले राजा चढ़ेगा फांसी पर, फिर दूसरा मंत्री चढ़ेगा। और वैसा ही हुआ। फिर राजा और मंत्री जब दोनों मर गए, तो जब प्रजा के सामने इनके शरीर को, इनके देह को नीचे लाया गया, उनके चेहरे से वो कपड़ा हटाया गया, तो प्रजा अचंभे में पड़ गई कि ये तो राजा और मंत्री दोनों मर गए। तो रात भर उन्होंने उसका शोक मनाया। फिर सोचा अब क्या किया जाए, किसी न किसी को तो राजा बनना ही होगा। तो दौड़ते दौड़ते गुरु के पास गए, गुरु के पैर पकड़ लिए। गुरु जी, हम एक समस्या, हमको इस समस्या से बाहर निकालिए। हमारे पास कोई राजा नहीं है, हमारे पास कोई मंत्री नहीं है, आप दोनों ही हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। तो मंत्री तो तुरंत मान गया, शिष्य जो था मंत्री बनने के लिए तुरंत मान गया। लेकिन गुरु को थोड़ा समय लगा। तो गुरु ने कहा, ठीक है, एक शर्त पे मैं राजा बनने को तैयार हूँ, आपको जैसा हम कहेंगे आपको वैसा मानना पड़ेगा, दिन को दिन और रात को रात करनी पड़ेगी। और प्रजा भी इस बात से सहमत हो गई। तो इस प्रकार से दिन वापस से दिन हुआ इस राज्य में, और रात वापस से रात। दिन में काम और रात में आराम। ख़त्म कहानी और पैसा